understand capitalism, what is capital and capitalism, you need to understand, you need to go to the base of something called as European history. Why we need the peculiar sense of European history is because we need to understand the role of church, the role of religion, the role of suffering, the upcoming of the two groups within Christianity, that the Protestants and the Catholics, and the role of Protestants and how and where the modernization came into picture, why they want to come out of the religious thought process. Now those history, the rise of nation state, the modern nation state, India is a nation state, the role of monarchy, the fall of monarchy, and a peculiar new system called as Marxism. Now this story has got a base of it. Yeah? अब हम उस स्टोरी के पास पहुंचेंगे. Done it now? Clear? To understand capitalism, we will now, I'll give you 3 to 4 stories. 4 stories, then I'll link, and today we'll deal with all the 4 stories. At the end of the class, we'll link it up. The first story is begun like this. See, there is a, yesterday class, I have said to you what I mean by God. कल की क्लास में क्या था हमने, God क्या है? And we have seen the basis of God is faith. And last class I've asked, how many of you believe in God? हाथ उठाओ. How many of you do not believe in God? And what do you do? तो तुम क्या करती हो? Agnostic, huh? Why do you believe in God? Do you have any proof of it? कल के क्लास में हुआ था. Any proof of it? Why do not you believe in God? Any proof of it? So the existence of God, the base of existence of God is faith, full stop. And faith do not need reason. I can talk any nonsense in the name of faith. I am saying this is Himalaya. You'll say, what the hell, sir? What the hell are you saying? This is not. The moment I'll become powerful, I'll put a sword on your neck. You will say, not only this is Himalaya, it has Tibet with it also. Yes or no? I can superimpose my faith on you. I cannot superimpose my reason on you. Getting what I'm saying? Getting what I'm saying? Hence, if from the childhood, understand this, what I'm saying. I'm moving to the class of Renaissance. मैं यहाँ जा रहा हूँ अभी. From the childhood, there is a concept called as, likho, just make running notes. Every notes cannot be given in class. There is a concept of something called as theory of tabula rasa. The theory of tabula rasa. The theory of tabula rasa means, the question might include this term, so we are saying this. The theory of tabula rasa means the theory of blank slate. Theory of tabula rasa means the theory of blank slate. It means it's an easy concept. It means when, listen, when a child takes birth, this is like a blank slate. Whatever impressions, look at these terms, I'm not saying idea, whatever impressions you are giving to the blank slate, whatever you are writing in the blank slate, the child will behave as such. I took birth in Odisha, so I can speak Odia. You cannot speak. You have your local Arunachali language over here. Had I been, even if I have taken birth in Odisha, अगर मुझे अरुणाचल में छोड़ दिया होता तो मैं आज तुम्हारी भाषा कह रहा होता. Yes or no? So nothing is pre-decided. Everything the man has garnered over here only. So if we're accepting, which is a practical fact, if we're accepting, understand this, if we're accepting the concept of blank slate, this naturally nullifies the need of God. Getting? Renaissance. It practically nullifies the need of God. Prior to the theory of blank slate philosophy, there was the concept of innate idea. There was the concept of innate idea.
Simply terms are enough for you, okay? Innate idea means this is the basis of existence of religious thought process. Simply listen, simply listen. Simply listen. Here, as we are dealing with the European history, thus innate idea is the basis of existence of church. In Islamic world, innate idea is the existence of mosques. Getting what I'm saying? Innate idea means everything, every knowledge of this planet, everything is already present in my mind. I'm not saying brain. As of now, let it be brain only, okay? Mind and brain are two different things. Everything is in my mind. I already know that this is a watch. My soul already knows. Religion, soul, super soul. My soul, which is a part of the super soul, already knows that this is a watch. Understand this. The moment I saw a watch, my soul recalled those ideas and said, oh, this is a watch. So watch is not a new thing. It is getting? It is already in the mind of God, super soul. I'm a part of the super soul. So I have all the knowledge. Getting? Religion is the only truth. Church will say this. Done? Or you came late? Okay, fine. Blank slate means there is something called as theory of blank slate. This is like a blank slate. बच्चा पैदा हुआ, खाली है, तुम उस पे कुछ भी लिखो वो वही बोलेगा. The language you are speaking and the language I am speaking are different. Done? That is theory of blank slate. Theory of innate ideas means ये blank slate नहीं है, इसमें सब कुछ पहले से है. फिजिकल ऑब्जेक्ट देखा, मैंने उस आइडिया को खींचा, उसको याद किया, क्योंकि सारे ज्ञान, सारे आइडिया सुपर सोल के पास है. ठीक है इतना? रिलीजन कहेगा थियोरी ऑफ इनेट आइडिया. प्रैक्टिकलिटी में हमने देखा ब्लैंक स्लेट. बच्चों को जो हमने सिखाया उसने वही सीखा. थिंग्स आर क्लियर? Once theory of innate idea will get established on the ground, this is the basis of Renaissance, why Protestants will come into picture, why they will stand against the authority of church and pope. They are not going against the authority of Christ. They are not, getting what I'm saying? The Protestants never went against Christ. The Protestants never only went against pope, church, and its exploitative authority. Hence, it went against Christology, but supported Christocentrism. Full stop. Analysis is the main question. In that answer, we will write theory of innate idea and theory of blank slate. Every notes cannot be given in class. आ रहा समझ में कुछ? I will tell more. अभी शुरू हुआ. मैंने कल के क्लास में कहा था, I will replicate the Delhi class over here. I will not reduce just because it is a local center. And you have to read Arjun Dev prior to coming to class. So there are two options in front of me. Either I am teaching you NCERT or I am teaching you UPSC. I prefer the second one. Hopefully you also prefer the second one, right? Very good. Blank slate. The Protestants will come up with a theory of blank slate. The Catholics will already have the theory of things getting tougher or easy. अभी करेंगे आप, ठीक है? Now listen. Before going there, come to the medieval Europe. Why medieval Europe? Christianity rose. Today is which year? 2025. Why 2025? Because we are taking zero as that of the Christ era. Getting? So Christianity has come into picture. ये तो तय 2025 साल पहले आया. उससे पहले भी तो वर्ल्ड थी. Yes or no?
उससे पहले भी तो वर्ल्ड थी. What about the previous history of Europe prior to 2025? Does anyone knows? In the world history class, we'll read the modern history. What is the European history prior to 2025 is the question. And why Renaissance will come into picture is the question, right? Now, yesterday class I have said you, कल का class miss नहीं करना था. Yesterday class I have said you, I hope you remember the rise of Islam, the rise of Christianity, the very specific exclusivist thought process, I am only correct. That part is done in yesterday class. जो नहीं आया जान लो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूस एक्सट्रीम में रहते हैं तीनों. वो कहते हैं हम ही सही हैं. बाइबल इज ओनली करेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रॉन्ग. कुरान इज ओनली करेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रॉन्ग. सो दे ट्राई टू कन्वर्ट द वर्ल्ड. क्रिश्चियंस, क्लास में बुरा लगेगा, क्रिश्चियंस ट्राई टू क्रिश्चियनाइज द वर्ल्ड, Muslims tries to Islamize the world. Both are in tussle because of this. Both are enemies of each other. In the Abrahamic thought process, there are three religions: Jews, Christians, and Muslims. The basic law is this: first, clean the Abrahamic home. पहले घर साफ करो. इसीलिए Christians and Muslims are enemies. They will stand against each other. That war is called as crusade. The question could be on crusade. Simply this much is enough for GS. This much is enough. For GS, enough. This much is clear? Extremist. No, sorry. Exclusivist. As Christianity, now the Jesus is being crucified. Jesus got crucified by whom? By whom? Yes, please. Jews. Then Jew ही था. किसने? At least you should be knowing, no? Who crucified Jesus? Romans. Romans are not Jews. One governor. Romans. Jews gave the information to the Romans कि there is a man who is spreading rationalistic knowledge, getting what I'm saying? Reason-based knowledge, not on the basis of faith. Hence, there is a natural flow of theory of innate idea. Getting? Human beings are being given a special position in his thought process. Humans are the highest creation of God. Getting what I'm saying? Are the loving being of God. Because of sin, this, that, and all. I hope you know Adam, Eve, this, that, and all those stories you know. Hence, and rationalistic thought process, which is not accepted to the religious orthodoxy of those days, and king was in no position to accept it. Jesus was moving in a very popular way. Hence, the Romans were angry with it. Romans asked, in short, this is a shorter story. Romans asked to nullify or to calm down your thought process. Jesus said, God is always there. I know he will save me. Acha, God will save you. Hence, he got crucified. He has few followers. Followers at the end of the day were asking to Jesus, oh Jesus, you said the God will come to save. They have tied us to the, that cross. Now why God is not coming? Jesus even in that place is saying, oh, God will come, just please don't wait, just have faith. End of the day, all got crucified. When the last nail was getting hit on his head, he was about to die. The man is still saying at the last, are you getting? His utmost extreme pain, the man is saying at that time, oh Lord, kindly forgive these people. They do not know what they are doing. If anyone will come and will slap you, will scold you, you will become all fire and all. Yes or no? और ऐसा कैसे बोल दिया मैं इतना महान? At the end of the last breath was praying to God to forgive the sins of the sinners. This makes him legend. आया समझ में? He is the epitome of humanity. Beyond him, nothing exists.
गाली करना है हम चर्च को कर सकते हैं, तो फादर सिस्टर पोप दिस दैट एंड ऑल, ऑफ कोर्स विल टारगेट देम ओनली नाउ, डोंट वरी, विल टारगेट मिशनरीज, विल डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस मैन. वी शुड अंडरस्टैंड कि कौन महान है और कौन नहीं. आया समझ में? यही रोमन्स कल को क्रिश्चियन बन जाएंगे. द सेम रोमन्स हु किल्ड टुमारो विल बिकम क्रिश्चियंस, and they cannot accept the fact that they have killed the Jesus. So someone needs to get villainized. No, that villain is called as Jew. तुमने खबर दिया तब हमने मारा. तुमने खबर ही क्यों दिया? अबे तुमने मारा ही क्यों है? वो रोमन्स था जो आज के डेट में क्रिश्चियन बन के बैठा है ना. Now all the world Christians are saying, अरे देखो Jews ने मारा है. तो now you are getting when the Jews were being killed by Hitler, why the Western European world, Christian world was silent? आए समझ में? वो अपनी गलती छुपा रहा है. Jews ने मारा, Jews ने मारा. तो तुम क्या कर रहे थे? समझ में आया? This story was needed to explain the Hitler class. I will say that class, that means this class. Why the whole world was silent? Why? Whole world means those days the Christians were ruling everywhere. It was not truly Christians, it was capitalist class. What does that mean? I'll say. But this much story is enough for you? Theory of innate idea, theory of blank slate, Jesus, Romans, this, this, that and all. But now again, faith will come into picture. Then there is a concept of, once again, concept of resurrection. What is resurrection? Don't say you do not know. What is resurrection in Christianity? Rising from the dead. That means it came from where? It will come from here. Then it is being claimed that people have seen Jesus once again. See, I got various things to say over here. And hopefully we have done in the class. And I know he has came once again, how this, that, and all, yogic philosophy, this, that, and all. Various things are there. As of now, leave it. In Abrahamic thought process, again, next story started. Now we'll see something called a theory of indulgence. वो कहाँ से आया, क्या होगा, I'll tell you. लेकिन ये कहानी सुनो. Abrahamic thought process में there is one life. अभी मैं तुमको बताऊंगा what is theory of priesthood, what is theory of indulgence. मैं बोलूंगा, उसके लिए ये कहानी जरूरत है. सुनो, गौर से सुनो. इंडियन फिलोसॉफी में there is one eternal soul transmigrating from one body to other. ठीक है? पुनर्जन्म होता है. I'll die, I will take another birth according to my karmas. Theory of karma will come into picture. Here, theory of karma is also there, but there is only one life. You are Christians, you have taken birth, you will die, you will get buried. That's it, game over. Your soul will wait for the judgment day. Done. In the judgment day, God will come down and will ask you what you have done. What good things, what bad things. Good things you will be sent to heaven. Heaven, you know what is there. And bad things you will send to hell. The day God will come, the Abrahamic followers, Jews, Muslims, and Christians, will rise from their graves. A new youthful body will be given to them. That is called as resurrection. है समझ में? उनको तुम अपने यूथ में जब पीक पे थे ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल यू, वही शरीर तुमको फिर से दे देगा गॉड. गॉड कैन गिव, नो, ही इज ऑल पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग. And God will ask what you have done. Now what is good things? अब अच्छा काम है क्या? Exclusivist thought process says, let it be Muslims or Christians or Jews, spreading God's message is अच्छा काम. उसके सिवा कोई अच्छा नहीं है. Means spreading Christianity or Islam or Judaism is only good thing. Then only you will go to heaven, else you will go to hell.
इतना समझ में आया? Christians will come out of that dark phase that is called as Protestants versus Catholic rift or war. Muslims will not, till now has not come out of it. Hence, moving to the dark age, similar dark age as Christian were going few centuries back. अब क्रिश्चियन उससे बाहर कैसे निकलेगा, यही स्टोरी है. हेवन के चक्कर से वो बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये स्टोरी है. फिर ये वार्डनर सी ऑल दिस लाइट, दिस पेन्स, दिस माइक्रोफोन, दिस आर गिफ्ट ऑफ साइंस, राइट? यूरोपियन साइंस. Yes or no? It's a Christian world. So they will come out of that religious clutch. Now you're getting what is resurrection? इतना आया समझ में? Hence, for the judgment day, one thing is compulsory. You need to be buried. तुमको दफनाना पड़ेगा. तुम उसको जला नहीं सकते. तुम उसको नदी में बहा भी नहीं सकते. अगर जला दिया, so it will become ashes. Hence, God will not give you body. आया समझ में? आया समझ में? But भाई, that is God. That is not you. If God, when God has created cosmoses, universes, He can do anything. It does not depend on your theory. Just wait and watch. Now you're getting those who will go against the church in the dark days. Why he will be burnt alive? So that in the judgment day, you will eternally push to hell. Heaven to जा ही नहीं पाओगे. आया समझ में? Now you are getting why there is witch burning. The young women are being burnt alive. You know why? The church. Now woman is an object for a man. Object of entertainment. Will ask favors. Those, priestly class. They will say no. The priestly class will declare her as witch. Diane. And ठीक से देखो, this witch burning hunting is not only there, it is throughout the world. See, it is not only in Europe, it is also in Africa, it is also in India. See, just check out. Yes or no? Hence, as they will not give them physical favor, they will be declared as witch. Millions of women burnt. Now you're getting why burnt? Not killed and buried. Faith do not need. कहाँ गया यार? Faith do not need reasons. उसको reason की जरूरत नहीं होती. You can talk in. This is Himalaya. You said no. Where the hell is my sword? I'll put it on your neck. You say sir, Himalaya भी है, तिब्बत भी है, मुझे चाइना भी दिख रहा. नहीं बोलोगे? बोलोगे ना? अब तुम बोलोगे, तुम्हारा बच्चा बोलेगा, 4 जनरेशन बाद हिमालय ये नहीं रहेगा, हिमालय ये हो जाएगा. Theory of blank slate. It is जितना अच्छा है ना. Now you are getting why terrorists are slitting the throats. उनको सिखाया गया ये अच्छा काम है, तो वो बुरा काम कर ही नहीं रहा. जैसे उसको मालूम चलेगा कि बुरा है, वो मारना छोड़ देगा. उसको सिखाएगा कौन? वो क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि यूएस होने नहीं दे रहा, यूरोप होने नहीं दे रहा. क्यों? रुपए बन रहा है. रुपए कहां से आया? We'll see to that part. Now gradually capitalism will come into picture. Just this is the next story, and it will side grade religion. What getting? This much is clear, no? Okay. Already we are done. Let's come to these people are exclusivist people. Class में बुरा लगेगा. When Christianity, I am not talking about Jesus. I love that man. Okay. When Christianity was spreading in Europe, उनकी स्टाइल अलग है. उनका स्टाइल है कि इनकी हिस्ट्री कल्चर खत्म कर दो, ताकि कल का बच्चा पूछ नहीं पाए कि हमारा उससे पहले क्या था. क्रिश्चियनिटी में वर्ल्ड शुरू होता है 2500 साल पहले. गेटिंग 20-25 इयर्स पहले क्रिश्चियनिटी में कोई हिस्ट्री नहीं है भाई. इस्लाम में भी यही है. 1400 साल पहले कोई हिस्ट्री नहीं है. वो बकवास है सब. वो हिस्ट्री ढूंढेगा प्रोटेस्टेंट अभी ढूंढेगा और वो लेकर आएगा. जब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहा था, उसने यूरोप के ही हिस्ट्री को मार के खत्म किया. और इसकी एग्जाम्पल तुम अभी देख सकते हो. अब इस्लाम स्प्रेड किया,
अफगानिस्तान में पहली बार जब अफगानिस्तान में तालिबान आया, उसने बुद्ध की मूर्तियों को तोप लगा के मार के फोड़ा। एवरीथिंग इज इन यूट्यूब, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। समझ में आया? वो कर क्या रहा है? वो हिस्ट्री मिटा रहा है, ताकि कल का बच्चा कहीं प्राइड ना ले ले बुद्धिज्म के ऊपर, कहीं उसके फिलोसफी से वो इन्फ्लुएंस होकर फिर से बुद्धिस्ट ना हो जाए। तो इनकी ये काम है, सारे स्क्रिप्चर, सारे टेक्स्ट, सब कुछ एंशिएंट डेज के उसने सारे जला दिए। फ्रांस की अपनी हिस्ट्री नहीं बची, जर्मनी की अपनी हिस्ट्री नहीं बची। हिटलर ग्लोरियस प्राइड जब ढूंढने लगा, आया हिटलर, देखा उसने ढूंढा भाई, पूछा कहां गया, कहां गया, व्हाट द हेल इज जर्मन प्राइड हिस्ट्री? जर्मनी वाज नॉट इवन अ कंट्री। नाउ यू आर गेटिंग व्हाट इज कंट्री? आई एम नॉट सेइंग नेशन। कल का क्लास हुआ था, कल का क्लास हुआ था ना, जर्मनी वाज नॉट इवन ए कंट्री, कंट्री भी नहीं था यार। जब हिटलर ने ढूंढा, उसको प्राइड कहीं दिखा नहीं, क्रिश्चियन ने मार के खत्म कर दिया था। उसने क्रिश्चियनिटी के प्राइड नहीं लिया, जिसको पता होगा, उसने रेस का प्राइड लिया, आर्यन रेस। देख रहे हो? गेटिंग? दो क्रिश्चियंस, लिया किसका प्राइड? आर्यंस। उसने जब हिस्ट्री देखा, उसने देखा देयर इज अ ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री हैपन टू बी आर्यंस। बोला ना ना ना, ये जो आर्यंस है ना, वो असली में हम हैं, वो जर्मनी से गए थे। ड्रामा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? उसको हिस्ट्री क्यों क्यों नहीं मिला? ये खत्म कर दिए। जैसे इस्लामिक हिस्ट्री खत्म है, इस्लामिक हिस्ट्री इस्लाम से पहले का खत्म है, अरब हिस्ट्री खत्म है ना, लेकिन हिस्ट्री मिल रहा है ना, क्योंकि यूरोप का हिस्ट्री मिलेगा। यूरोपियंस इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा था, ग्रीक्स। आया समझ में? अरब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा था, हिस्ट्री वहां से मिलने लगा। प्रोटेस्टेंट्स को हिस्ट्री ग्रीक हिस्ट्री से मिलेगी। अब ग्रीक हिस्ट्री क्यों, इटली क्यों, हम उसको आगे करेंगे। क्लियर? इंटरनलाइज्ड? बुरा लग रहा है क्लास में? नो राइट? इट्स गोइंग गुड? बुरा लग सकता है कभी कभी, बट आई एम टीचिंग इंडियंस, आई विल नॉट हेजिटेट टू से। डन? अब हम आते हैं यूरोप में। ठीक है, अब हो गया, अब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड किया। अब क्रिश्चियनिटी यूरोप में क्यों स्प्रेड करेगा, हम कल के क्लास में किए थे, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है, अब आते हैं मेडिवल यूरोप पे। मेडिवल यूरोप पे आए। नाउ यू आर गेटिंग व्हाई मेडिवल, व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एंशिएंट यूरोप। आए समझ में? गेटिंग? एंशिएंट यूरोप का कुछ है ही नहीं, क्या देखूं, जला दिया सब कुछ उसने। मैं जान जानकर जान सकता हूं ग्रीक्स के बारे में, दैट्स इट। एंशिएंट फ्रेंच, इटली विटली में मुझे कुछ मालूम नहीं चल पा रहा। समझ में आया क्यों? ओके। इसलिए इस्लामिक हिस्ट्री मेडिवल से ही चलेगा, वरना पोस्ट मोहम्मद चलेगा। ठीक है, नाउ लिसन। अब क्या हुआ, मान लो ये यूरोप है, ये उसके देश है। इन शॉर्ट, ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, फेल हो जाओगे। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा यूरोप है, ऐसे देश है। ऊपर ये, यहाँ पर एक किंग बैठा, गरीब सा किंग बैठा है। इसका ना छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, छोटे मतलब बड़े बड़े। गेटिंग? एक देश है, नेशन स्टेट सेंस में नहीं, एक फिजिकल बाउंड्री है, वहां पर एक सो कॉल्ड किंग बैठा है, सो कॉल्ड किंग बैठा है। उसके कई सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उसको लॉर्ड्स क्यों बोलेंगे हम देखेंगे उसको। फ्यूडल लॉर्ड्स, यहां पर एक फ्यूडल लॉर्ड है, बात को समझो। तो इस स्टेट का यहां पर एक फ्यूडल लॉर्ड होगा, यहां पर एक फ्यूडल लॉर्ड होगा। तो फ्यूडल लॉर्ड्स आर्मी संभाल रहा था, पैसा कलेक्ट कर रहा था, वो अपने जोन का असली में किंग था। इतना समझ में आया? ऊपर एक नॉमिनल हेरिडिटरी किंग बैठा है, कुछ कुछ रुपए उसको दे रहा था। ये असली वाला किंग जो है, इनके ऊपर वो डिपेंडेंट है। ये मेडिवल यूरोप का हिस्ट्री का सत्य है। दिस मच इज क्लियर? तो इस फ्यूडल लॉर्ड का मन किया, उसने इसको कब्जा कर लिया, उसकी बाउंड्री इतनी बड़ी हो गई, तो किंग का बाउंड्री ऐसा हो गया। आया समझ में? समझ में आया? ओ, आया समझ में? क्या समझे? समझा?
तो फिजिकल बाउंड्री ऑफ द स्टेट, नेशन स्टेट असली में नहीं था, समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं. फिजिकल बाउंड्री ऑफ द स्टेट वाज नॉट इंटैक्ट, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, किंग वाज नॉट ए पावरफुल एंटिटी. तो लोग डिपेंडेंट थे इन फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर, जो छोटे थे ना फ्यूडल लॉर्ड्स, इनके ऊपर. किसके लिए? हर चीज के लिए जो कि किंग की जरूरत होती थी. Hence, because of this extreme dependency on those individuals, they were called as lords. अब समझ में आया मिलॉर्ड क्यों आया ये शब्द? इन्हीं ये फ्यूडल लॉर्ड्स के वजह से, इसलिए उनको लॉर्ड कहा गया या फिर लीज लॉर्ड कहा गया या फिर सुजरन्स कहा गया. सुजरन्स मीन्स सोवरन, एब्सोल्यूट अथॉरिटी. तो यहां पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंग नहीं था मेडिवल हिस्ट्री में यूरोप का. एंसेंट हिस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जला दिया है. डन. ओके. तो यहां पर जो सर्फ्स रह रहे थे या फिर फार्मिंग क्लास रह रहा था, वो लॉर्ड पर डिपेंडेंट था. ऑफ कोर्स होगा, हर चीज के लिए होगा, रुपए से लेकर सिक्योरिटी तक होगा. दे वर कॉल्ड एज वैसल्स. दे वर कॉल्ड एज वैसल्स. टर्म याद रहा? फिजिकल बाउंड्री इंटैक्ट थी नहीं. आया समझ में? क्यों आया समझ में ना? क्यों? क्योंकि एक इसका मन किया यहां घुस गया, फिर ये यहां घुस गया, इस बेचारे का स्टेट कम हो गया. तो कौन कहां पर क्या कर रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा. एक चीज तो तय हो गया, कल के क्लास में हुआ था हमारा, दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन. They do not have the concept of nationalism. Thus do not have the concept of brotherhood. Thus can kill each other. Thus there is lack of security. Thus there is lack of trade and commerce. Thus there is lack of money. Thus there is lack of cities and towns. Is all this supports rise of feudalism. Done. Thus king is weak, do not have dignity. Thus king, अगर king को चांस मिलेगा अपनी पावर बढ़ाने को, उस मौका को लेगा. Done. This is one story. Now king is waiting for that chance. The chance will be given by the merchant class. From where merchant class will come into picture, we'll see to that. ये स्टोरी याद रहा? Yes or no? अभी हम लाएंगे. एक चीज तो तय होगी कि भाई, now open your atlas. Atlas लायो. I can show it from here, but I'm not interested in. And those who are online, open your atlas and see. घर में हो, जाओ लेकर आओ, खोलो और देखो. See, go to the map of Europe. Go and see the map of Europe. There, see the position of Italy. See Italy. जाओ इटली देखो. See Italy. See the structure of Italy. See a place named as Venice. I can show you, still use, see it faster. See Venice in Italy. Dikha Venice? See the position of Venice on the map. Then see Genoa. Dikha? Dikha? इटली में वेनिस और जिनोवा. तुम अटलस क्यों नहीं लाए भाई? क्या सर? क्या? अच्छा तुमने सोचा. अच्छा अब चलो देखो, इटली देखो, इटली में जिनोवा देखो, वेनिस देखो. सही नहीं? जिनोवा देखो मेडिटेरेनियन के पास है ना, मतलब मेडिटेरेनियन में ही है वैसे. और वेनिस देखो एड्रियाटिक सी के पास होगा, है ना. अब जाओ वर्ल्ड मैप पे. नाउ गो टू वर्ल्ड मैप.
and see Italy. देखा इटली, सी इटली. अब दोनों जगह पे जाओ, वेनिस और जिनोवा पे जाओ. Do not use your pen on your atlas. No one will use his pen on his atlas. दिखा उसमें, हो गया. अरे यार वहां पर नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने तुमको पहले दिखाया. वहां पर देख लिया ना, यहां पर सोचो. तो क्यों दिखाया वहां पर मैं? तो यहां पर सोचो, इमेजिन करो ये इधर होगा. दिख गया इमेजिनेशन में? दिखा ना, इसलिए दिखाया वहां पर मैं तुमको. कल बोला था मैं तुमको वेस्ट एशिया, याद आया कुछ? कल क्लास क्यों नहीं आए तुम? लिखो, देखो वेस्ट एशिया. देखिए वेस्ट एशिया, देखिए वेस्ट एशिया. अब देखो यूरोप, उसी में ही अटलस में देखो, अटलस में देखो. ये वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच में इटली है. इटली इज अ पार्ट ऑफ यूरोप दो. अगर वेस्ट एशिया मतलब पाकिस्तान से वेस्ट जाओ, मेडिटेरेनियन सी तक गए. पाकिस्तान से वेस्ट जाओ अप टू द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, दैट इज वेस्ट एशिया. अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट मिलाकर ऊपर के जितने स्थान हैं, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो है सेंट्रल एशिया. डन. मेडिटेरेनियन क्रॉस करो, वो है यूरोप. डन हो गया. वो जो वेस्ट एशिया है वो मुस्लिम है. क्लियर? अब ये मेडिटेरेनियन क्रॉस करके तुम यूरोप में घुसोगे, वो क्रिश्चियन है. क्लियर? और दोनों दुश्मन हैं. क्लियर? वो एक दूसरे को मार रहे हैं. इसका ये मतलब नहीं कि ट्रेड नहीं हो रहा. मनी इज ए वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट. इट इज मोर पावरफुल देन योर गॉड. गॉड तो बच्चा है. गॉड इज ए किड इन फ्रंट ऑफ मनी. वो ट्रेड हो रहा था, इतना समझ में आया? लेकिन वो ट्रेड किससे कर रहा था? एक तो है स्नोई डेजर्ट, एक तो है सैंडी डेजर्ट. वो ट्रेड कर रहा था. देखो एक प्यारा सा देश है जिसका नाम है भारत, इंडिया. वो ट्रेड इंडिया से कर रहे थे. एक्सट्रीमली रिच. इतना समझ में आया? तो क्रिश्चियंस और इंडियंस के बीच में मुस्लिम्स है. यस और नो? तो अगर क्रिश्चियन वहां से जाएगा, उसको वो मारेगा ही ना, तो उसको मार देता था. तो बेचारे क्रिश्चियंस या फिर यूरोपियंस रिलीजियस इसकी वजह से, रिफ्ट की वजह से इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर पाया. इतना समझ में आया? आया समझ में? बट अरब मर्चेंट्स, नेक्स्ट लाइन, अरब मर्चेंट्स इंडिया से सामान लाएगा, किसी को तो बेचेगा. यूरोप में ही बेचेगा ना. अगर ये खुद यूरोप में जाएगा तो क्रिश्चियन उसे मार देंगे, तो किसी को तो देगा. वो इटालियंस को देता था. इटालियन क्रिश्चियन है, लेकिन पूरा यूरोप का बिजनेस इटली के थ्रू हो रहा है. उसको बहुत पैसा मिल रहा है. उसने हाथ मिलाया हुआ था अरबों के साथ. और रेस्ट ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड उसकी सपोर्ट में भी था. कम से कम इंडिया से सामान आ तो रहा है, भले ही महंगा मिले, हो तो रहा है कुछ. आया समझ में? इटालियंस विन विन सिचुएशन में बैठा है ज्योग्राफी की वजह से. इंटरनलाइज हो ना हो गया. क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो बिजनेस कर रहा है. वो इंटरमीडियरी बन के बैठा है मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बीच में. ऐसा हो सकता है. पैसा इज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट. वो जिंदा रहेंगे ना यूरोपियंस, तो उन्होंने इटालियंस का सहारा लिया. दिस मच इज क्लियर. लेकिन इससे क्या हुआ ना, इटालियंस, इटली बोल के कोई देश था नहीं तब, सिटी स्टेट्स थे. यूनिफिकेशन ऑफ इटली बहुत बहुत लेट होगा. तो ये लोग रिच हो गए. समझ में आया? रिच हो गए. अगर रिच हो गए तो वहां पर सिटीज एंड टाउन्स बढ़ेगा ना, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा ना, एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पोर्ट सिटीज बनेगा ना, पैसा आएगा, पोर्ट सिटीज बनेगा, टाउन्स एंड सिटीज होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स का दबदबा कम होगा ना.
तो चर्च का भी दबदबा कम होगा ना। चर्च इज अनदर फ्यूडल लॉर्ड जिसके पास लैंड है। ये छोटे छोटे सिटी स्टेट इन्हीं के पास लैंड नहीं है, तो जिसको बिजनेस करना होगा वो जिनोवा, वेनिस, अदर इटालियन सिटी स्टेट्स पे आएगा ना। ये कैथोलिक होने के बावजूद भी रिलीजियस क्लच में नहीं रहेंगे। पोप वहीं बैठ रहा है वेटिकन सिटी में, देखो पोप वहीं बैठ रहा है। रेस्ट ऑफ द यूरोप ऑर्थोडॉक्स है, इटली नहीं। पैसा, इतनी कहानी हजम हो गई, हो गया, डाइजेस्ट हो गया। ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी में नहीं है, पहला पॉइंट। पोप का दबदबा उनके ऊपर है नहीं, दूसरा पॉइंट। चर्च वहां पर वीक है, तीसरा पॉइंट। फ्यूडल लॉर्ड्स की कमी है या फिर वीक है। ये ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, यही लोग हैं जो ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ प्राइड को ढूंढेंगे। वो कैथोलिक ने किया था, प्रोटेस्टेंट्स ने नहीं। समझ में? ढूंढेंगे ग्लोरियस हिस्ट्री, वो उनको मिलेगा नहीं। यही लोग हैं, बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्निटी एंड ओपन माइंडनेस, यही बोलेंगे कि ग्रीक्स हिस्ट्री हमारे पास है, हम देख सकते हैं। ग्रीस देखो, ग्रीस आसपास ही उसके, देखो देखो ग्रीस उसके पास ही है, आसपास ही, देख लो। तुमको दिखेगा, यूरोप वाले मैप में दिख जाएगा, अगर वर्ल्ड में नहीं दिखा तो। दिखा ग्रीस, दिखा ग्रीस, ग्रीक्स देखा। वेरी गुड। ग्रीक्स नो अपने आप को यूरोपियन व्हाइट्स नहीं कहते, नहीं कहते वो। पता है क्यों? वो कहते हैं कि हम बाकी यूरोपियंस के ऊपर हैं, उनकी ग्लोरियस हिस्ट्री है इतनी। एक समय था ग्रीक्स अपने आप को सन ऑफ गॉड खुद कहते थे। हम ही बच्चे हैं किसके? ना गॉड के। वो पावरफुल हुआ करते थे, ग्रीक किंगडम हुआ करती थी। क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के समय ग्रीक्स क्रिश्चियन बने, उनकी हिस्ट्री इतनी ग्लोरियस थी, वो कभी खत्म नहीं हुई, वो बहुत मात्रा में रह गई। ठीक है? इन्हीं हिस्ट्री को, कल्चर को, सब कुछ को इटालियंस लेकर आए और यूरोप में दिए। तो रेनेजेंस की शुरुआत इटली से हुई, इन सब कारणों की वजह से। ये मेंस का सवाल है, समझ में आया? वो पूछेगा तो फिर किसी का प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबकी डिपेंडेंसी थी इटली पर। वो इंटरमीडियरी बन के बैठा था अरब और यूरोप के बीच में, या फिर इंडिया ईस्ट और वेस्ट के बीच में, वट एवर यू कैन से। फुल स्टॉप एनालिसिस, यही मेंस क्वेश्चन है। इतना समझ में आया? इंटरनलाइज हो गया चीजें? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब आते हैं इटली छोड़ के। आ गया सबको समझ में ना? नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड एनी बुक। अब आते हैं हम फिर से इटली छोड़ के अंदर की तरफ आओ, यूरोप पे आ जाओ। नहीं, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। ऑफ योर कैमरा, whoever you might be, please off your camera. Online student, है कुछ लोग हैं, चलो हम लोग, हाँ भूल गया। अब आते हैं अब हम डिसइंटीग्रेट करेंगे फ्यूडल सिस्टम को। अब हम क्या करेंगे? डिसइंटीग्रेट करेंगे फ्यूडल सिस्टम को। मैंने तुमको बोला कि इटली में क्यों टाउन्स एंड सिटीज होंगे, दैट पार्ट इज क्लियर। अब इटली सामान लेगा, जर्मनी बोल के कोई देश है नहीं, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, कहीं तो लेकर रखेगा फिर बेचेगा। वहां पर तो छोटे छोटे टाउन्स बनेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स वहां से बढ़ेगा। ईटानगर वाज नेवर सच अ बिग सिटी, लेकिन 20 साल में बड़ा बन गया ना। अभी ईटानगर और नाहरलगुन जुड़ने वाला है। अगर जुड़ गया, आर यू थिंकिंग ऑन ए हिमालयन हिली स्टेट इतना बड़ा सिटी बनने वाला है? उसके लिए टाइम तो लगेगा ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ तो लगेगा, लेकिन बन जाएगा। इतना तो तय है। जो छोटे छोटे सिटीज हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, वो ट्रेड एंड कॉमर्स करके आगे तो बढ़ेगा।
जैसे जैसे वहां पर बढ़ेगा वहां फ्यूडल लॉर्ड का कब्जा तो कम होगा, लेकिन आसपास के गांव में फ्यूडल लॉर्ड्स तो बैठे हैं, उनके पास बॉन्डेड लेबर तो हैं जिनको कहते हैं सर्फ्स, एसीआरएफएस। क्लियर इतना? उनको क्या कहते हैं? सर्फ्स। ओके, वेरी गुड। वो बॉन्डेड लेबर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उधारी ले रखा है, यही ना? अगर उसने उधारी चुकता कर दिया तो रिलीज हो जाएगा। तो कई सारे बॉन्डेड लेबर भागकर इन्हीं सिटीज एंड टाउन्स में आ गए। तो देयर इज अ सरप्लस ऑफ लेबर इन द सिटीज एंड टाउन्स, so there is a working force, so more business can be done, so more business been done, cities and towns रोज उसकी विड्थ बढ़ी, इनके पास पैसा आया, तो ये लोग जाकर लैंडलॉर्ड्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स को रुपए दे दिए, रिलीज हो गए, फिर सिटीज आ गए, फ्रीडम दिखने लगा। और एक लैंडलॉर्ड चर्च भी तो था, वो चर्च के चुंगल से, सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड चर्च था वैसे, चर्च के चुंगल से बाहर आके सिटीज में रहने लगे। दे एनालाइज्ड एंड एंजॉयड द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ द एसेंस ऑफ फ्रीडम। पहली बार उनको मुक्ति मिली रिलीजियस क्लच से। कोई उनको नहीं कह रहा कि ऐसा कपड़ा पहनोगे, तुम ऐसे दिखोगे, तुम कन्फेशन करने के लिए साल में एक बार आओगे, कोई तुमको लेटर नहीं दे रहा। इंडल्जेंस, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुमने कोई पाप किया है, तुमने मर्डर कर लिया, यू विल गो टू द चर्च, देयर इज अ कन्फेशन बॉक्स, वहां तुम कन्फेशन करोगे, फादर आएगा, तुम पर पानी छिड़क देगा, तुमसे पैसा ले लेगा, तुमको एक लेटर लिख के देगा। हाँ, तुम उसको लेटर को जेब में रखकर घूमोगे। जब तुम मरोगे, लुक एट द डार्क एज, जब तुम मरोगे, तुम मतलब नॉट तुम, दोस्त, ओके, जब कोई मरेगा वो उसको उसके साथ दफनाया जाएगा। जजमेंट डे में गॉड आएगा तो तुम उसको लेटर देखोगे, सर देखिए, अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको सर्टिफिकेट मिला है क्या, लेटर ऑफ इंडल्जेंस, तो वो तुमको भेजेगा हेवन। लोग उसको मानते थे। यही लोग हैं जो आज इतने साइंस में तरक्की करके बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो इन सब डार्क एज से कम से कम वो छोटे छोटे सिटीज जो हैं उनको वो लिबरेशन देने लगा। वहां कैश क्रॉप्स उगने लगे ना, यू आर गेटिंग व्हाट आर कैश क्रॉप्स, बेचकर ज्यादा रुपए आएगा। पीपल बिकम मनी माइंडेड। मनी माइंडेड होना भी जरूरी था। मनी, विदाउट मनी, पीपल सेज money is not everything, agreed, but money is almost everything. झूठ है जो कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, बकवास है। गिव हिम 2 tight slaps, useless, get out। पैसे से ही खुशी मिलती है। फिलोसॉफी पेट भरने के बाद आएगा, भूखे पेट भजन नहीं होता। ओके, पहले पैसा कमाओ, चोरी करके नहीं, गला काट के नहीं, नौकरी वोकरी करो, काम करो, बिजनेस करो, लेकिन पैसा जेब में रखो। तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। ये टाउन सिटीज वाले लोग सीख गए, जैसे ईटानगर वाले सीख चुके हैं। उनको पैसा चाहिए हर चीज के लिए, देख रहे हो ना, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। गेटिंग? ये लोग आकर बिजनेस करके काम करना सीख गए। जरा गौर से समझो, वो गांव छोड़कर आया है कोई, वो फैमिली बॉन्डेज, बात को समझो, वो फैमिली बॉन्डेज सिस्टम से निकल कर आया है। वो शहर में अकेला रह रहा है, उसको वो भाईचारे की जरूरत नहीं है, वो फैमिली सिस्टम से बाहर है, उसका कोई सिंपैथी विम्पैथी नहीं है, वो तुमसे 2 रुपए ज्यादा ले लेगा, उसकी एथिकल मोरल वैल्यूज कम होगी। यस और नो? रिलीजन के चलते तुम्हारे ऊपर रिलीजियस मोरल एथिकल बाउंडेशन था। गॉड देख रहा है तुमको, जजमेंट डे में पनिश कर देगा। यहाँ कोई गॉड वर्ड नहीं है, यहाँ पैसा है, कैपिटलिस्टिक आएगा अभी, समझे? अभी पहली बार वेल्थ यूज करके वेल्थ क्रिएट किया गया। मैंने नहीं कहा पैसा यूज करके पैसा क्रिएट कर गया, पैसा इज वन ऑफ द वेल्थ। वेल्थ का ये मतलब है कि जिससे वेल्थ क्रिएट हो। आ रहा समझ में? मैंने 2 बार वेल्थ का टर्म यूज किया। वेल्थ इज द मीन्स, वेल्थ इज द एंड। पैसा जनरेट करने के लिए एक वेल्थ है लैंड रिसोर्स, एक है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा आगे, उससे एक्सपेक्टेशन होगी, डिपार्टमेंट बनेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। ह्यूमन नहीं है भाई, वो रिसोर्स है। आया समझ में कुछ? पैसा बनाने के लिए पैसा भी एक वेल्थ है, वेल्थ बनाने के लिए वेल्थ की जरूरत पड़ेगी।
वो वेल्थ को रोटेट करके वेल्थ जनरेट करना इज कॉल्ड एज कैपिटलिज्म. दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. कैपिटल इज द वेल्थ. वो वेल्थ गेटिंग, इट इज द मीन्स, इट इज द एंड. इसी सोच, यही वाद को पूंजीवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म. तो दैट क्रिएशन ऑफ कैपिटल, लैंड इज द कैपिटल. We need more land to create more money. We need more machines to create more money. Human will become a material. क्या है यार ये? Will become a material, will become an object. कल तक human being sin and क्या है उसका? पाप और पुण्य. पुण्य को it is being said a sin and पुण्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार? भूल गया. क्या? Purity. पाप और पुण्य, पाप और पुण्य. अब पुण्य को क्या कहते हैं? डू नॉट से, यू डू नॉट नो. क्या कहते हैं यार पाप? कुछ लिखा है इसमें. क्या लिखा है इसमें? वर्च्यू. वेरी गुड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर सेइंग व्हाट आर यू डूइंग हियर? वर्च्यू. एग्जैक्टली, वर्च्यू. पाप और पुण्य, नॉट एग्जैक्टली वर्च्यू. हाँ, वर्च्यू भी नहीं है पूरा. चलो, वही है पाप और पुण्य. तो इंसान, सो द मैन केम आउट ऑफ दोस थॉट प्रोसेस. ओके, कैपिटलिज्म आया समझ में. इससे पहले, गेटिंग द स्टोरी, कैन यू कैच समवन? इधर आओ, उसको बिठा कर समझा दोगे? नहीं. यस और नो? व्हाट? यस और नो? समझा दोगे? किताब में लिखा है, पढ़ लेना. नोट्स देंगे? नोट्स चाहिए? देंगे नोट्स देंगे. इसी तरीके से मैं हर क्लास में झूठ बोल देता हूँ, नोट्स देंगे, फिर देता होता नहीं. बट दिस टाइम we'll give you notes from industrial revolution and capitalism, from where directly we'll start the syllabus. These things are needed to understand the syllabus. और ये है सिलेबस में, वैसे ये है इनडायरेक्टली है. इन द फ्यूडल स्ट्रक्चर, इतना कहानी समझ में आया ना जी? इन द फ्यूडल स्ट्रक्चर में 3 क्लास थे. ऑफ कोर्स प्रिस्टली क्लास, वो तो भाई वो तो है. क्लर्जी, एक बेचारा किंग था, याद है? सोल्जर वोल्जर होंगे, नाइट्स, और द सोल्जर क्लास, और हम लोग आम आदमी टाइप, कॉमनर्स. And let me tell you one thing, few months left with you, just few months, या फिर 1 साल 1.5 साल बचा तुम लोग के पास आम आदमी बन के रहने को. उसके बाद तुम IAS वायस बन जाओ, स्टेट PSC तुम्हारी लग जाए, तुम और आम आदमी नहीं रहोगे, है ना? So enjoy this last few days, few months, or a year and a more, that's it, of being a common man. बनोगे ना ऐस या नहीं बनोगे? अरे मास्क खोल के बोल. हाँ बोल. Exactly. So workers, so the soldiers or the knights, ये 3 थे, ठीक है, फ्यूडल स्ट्रक्चर में. ये जहां पर एक कैपिटलिस्ट लोग आए ना, आ रहा समझ में ना, कैपिटलिस्ट लोग, दो सिटीज एंड टाउन्स में जहां गॉड की सिग्निफिकेंस खत्म हुई, यही बनेंगे प्रोटेस्टेंट्स. रुको अभी, यही बनेंगे. उनको पैसा चाहिए, समझ में आया? हाँ, वहां पर एक और खतरनाक क्लास आया, वेरी वेरी डेडली क्लास, यू पीपल, मिडिल क्लास. ये बेचारे ना घर के ना घाट के, नॉट रिच. दे वांट्स टू लिव लाइक अंबानी, दे कैन ड्रीम, but they cannot. For them and aeroplanes, there is a separate class, economic class. There is another class within aeroplane that is called as business class. No, in train also there are 3-4 classes: first class, second class, third class, general class. पता नहीं क्या, क्या class. आया समझ में? US is US not because of rich classes. US is US because of enormous middle class. China is a second largest economy because of big middle class. India is the biggest market of the world because of big
मिडिल क्लास, यही लोग हैं जो टीवी खरीदते हैं. डू यू रियली थिंक अंबानी इज वाचिंग सीरियल्स? नो, राइट? अंबानी की बीवी, आई डू नॉट थिंक सो. योर मदर, you have a TV, right? Ambani will buy motorcycle? I don't think so. No, right? ये खरीदता कौन है बाइक यार? कार कौन खरीदता है? 10 लाख के अंदर, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख में. तो हुंडई तो आएगा ना तुम्हारे देश, वो तो बेचेगा. अभी आए हैं ईवी, है ना, और सारे खरीद रहे हैं. क्यों खरीद रहे हैं भाई ईवी? नॉट बिकॉज कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, बकवास. अरे नहीं, तेल डालना नहीं पड़ेगा. ठीक है, इमीडिएटली 100 रुपए देकर तेल डाल रहे हो, 400 रुपए देकर तेल डाल रहे हो, वो तो नहीं होगा. ईएमआई में गाड़ी कौन खरीदता है? लोन लेकर घर कौन खरीदता है? लोन ले लेकर बर्बाद कौन होता है? नॉट मी. मिडिल क्लास, राइट? यही है जो इकोनॉमी चलाती है ना. इन्हीं को बेचने के लिए ये आ जाता है चाइना. एप्पल भी चाइना का है ना. सोचो इंडिया कितनी बड़ी मार्केट होगी और हम किस लेवल पर फेलियर कर रहे हैं अपने ही लोगों को अपना चीज बेचने में. एंड शॉक टू सी इन ईटानगर एप्पल का ये जो स्क्रीन गार्ड है, आई होप आई हैव सेड दिस इन लास्ट क्लास, राइट? ये जो कवर है वो 2000 रुपए का है. यू कम टू दिल्ली, इट इज 100 रुपीज, 200 रुपीज. इन ईटानगर इट इज 2000 रुपीज. आर यू गेटिंग व्हाट इज कैपिटलिज्म? There is no sense of brotherhood. There is no sense of he or she being my own. ये रिलीजन किया करता था, ये खत्म हो गया. सो एक खतरनाक क्लास अब अभी निकलेगा, मिडिल क्लास, जिसकी एस्पिरेशंस बहुत है. एस्पायर करके बैठा, कर नहीं पा रहा, तो भाई उसको लोन दे दो. बैंकिंग सिस्टम विल कम इनटू पिक्चर. क्या करें यार? प्राइवेट में, स्टेट नहीं कर रहा उसको, बैंकिंग सिस्टम विल कम इनटू पिक्चर. There is another concept. Every religion, I am saying religion, goes against the concept of banking system or interest system. Interest देना और लेना religion में हराम है और सही था. कैसे? बात को समझो. There was village system. Everyone, even in your bastis or villages, everyone knows each other. There is a sense of brotherhood. Yes or no? If someone is asking money from you, that means he or she is in trouble. Hence, he or she is asking money from you. You cannot ask from your own brothers and sisters, "Acha, I'll give you money. Give me interest in its place." Will you do that? No, right? Those days, village system, close society, everyone linked to each other. Thus, someone is suffering. It is our duty to help. Thus, religion says, interest taking or giving is haram or illegal, not accepted. That is cultural, ethical, moral and accepted fact of the society. लेकिन वो तब सही था ना. आज के दिन में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है. टू हाउ टू मेक अ बिजनेस, यू नीड 2 crore rupees. Who will give you? No, the banks will give you. But banks are not your friends or brothers. So bank need to earn also. So we'll take interest on it. So this globalized economy, the market, or to make big businesses, you need interest. It is not that close village society anymore. Getting? Those days, it was true. It was right. That aspect of religion was not wrong. It might not be accepted or implemented in the modern society. That does not mean that is wrong. That means it is no more valid in today's days. When when religious thought process will go against this banking system, the merchant class will look for help. Yes or no? Yes or no? Against that of the feudal lords, this merchant class has got money. इनके पास रुपए है. ऊपर एक बेचारा गरीब सा किंग बैठा था. याद आया? याद आया? ये गए किंग भाई, ये लो पैसे. ना क्या करूंगा? ना सोल्जर ला सोल्जर. ना क्या करना है? ना फ्यूडल लॉर्ड को मारना है. फ्यूडल लॉर्ड किसका दुश्मन? किंग का. एनिमी व्हाट? ना फ्रेंड.
कौन पावरफुल हुआ? किंग। किंग के पास अपना सोल्जर बैठा, आया, वी आर मूविंग टू ए सिविल वॉर। फ्यूडल लॉर्ड्स का अपना सोल्जर है, वो किंग को दिया करता था, है ना। अब किंग का अपना सोल्जर है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स को मारने लगेगा, किंग। और किंग के पास एक बहुत ही जबरदस्त चीज आएगी जिसका नाम होगा गन पाउडर। गन पाउडर कौन लाया? ये मर्चेंट क्लास। किसने रुपए लगाया? ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मर्चेंट क्लास वही पैसा लगाएगा जहां पर उसका फायदा होगा। वो रोड बनाया तुम्हारे लिए नहीं, उसकी रॉ मटेरियल जा सके, तुम बस जाते हो उसमें, दैट्स इट। उसने ट्रेन बनाया, उसकी मटेरियल आ जा सके, बिजनेस हो सके। उसने पोस्टल सिस्टम बनाया तुम्हारे लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए बनाया, वो फिर बाद में यूज हो गया। देखो, उसने लाइट बनाई तुम्हारे लिए नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारे लिए हो, उसने सब कुछ किया जो उसके लिए हो, और उसने उसी को बेचा। ये मेरे लिए किसने नहीं बनाया? डिजिटेक वाले ने अपने लिए बनाया। मैं गया था खरीदने, मतलब तुम्हारा कोचिंग, आया समझ में? उसको पैसा चाहिए, मुझे सर्विस चाहिए, गेटिंग कैप। पूरे गेम में गॉड की जरूरत नहीं है। गॉड साइड ट्रैक होता हुआ गया, अब एक नया पावर आने लगा। फ्यूडल लॉर्ड्स मरते हुए गए, कम होते गए, एक नया पावर है मार्केट में जिसका नाम है, कहां गया? किंग। पावर करप्ट्स। आप कहानी याद रह रहा है? पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, एब्सोल्युटली। अब जो किंग था वो अपने स्टेट में पूरा बैठ गया। ऐसा नहीं बनाना है, फेल हो जाओगे। अब किंग बैठा, यहाँ किंग बैठा, यहाँ किंग बैठा। अब ये किंग देख रहा है इसको, ये देख रहा है उसको। अब किंग वर्सेस किंग होगा, यस और नो? उसको पैसा मिलेगा। पैसा कौन दे रहा है? मर्चेंट क्लास वार के लिए पैसा क्यों दे? अगर मैं इसको ऑक्युपाई कर लूं, पूरा बिजनेस मेरा। समझ में आया? समझ में आया? पूरे गेम में देखो गॉड थमता हुआ जा रहा है, पूरा गेम में देखो। फ्यूडल लॉर्ड्स ग्रेजुअली 18-19 सेंचुरी आते आते खत्म होगी, वो वीक होता हुआ जा रहा। एक फ्यूडल लॉर्ड है चर्च, और चर्च फिर से क्या है? रिलीजन। दोनों तरफ से चर्च को मार पड़ गई। समझ में आया? दिस मच इज क्लियर, दिस मच इज क्लियर। नाउ किंग हैज बिकम पावरफुल। अब किंग को पैसा चाहिए, एब्सोल्यूट, और उसके सामने कोई थ्रेट नहीं है। वो मर्चेंट क्लास से ज्यादा पैसे लेने लगा। टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स आया, कल तक डोनेशन था, टैक्स आने लगा, असली वाला टैक्स। ये टैक्स, वो टैक्स, जिनका टैक्स, फलाना टैक्स। ना मर्चेंट क्लास बोला, बाबू बेटा, हम तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से तुम हो, यस और नो? Yes, now the merchant class were not happy. Merchant class has got money. Money is powerful than God. Merchant class गुंडे लगाकर, in short, गुंडे लगाकर सिविल वॉर करा देगा घर में. In short, crux that is called as English Revolution. स्टोरी बहुत बड़ी है। इंग्लैंड में पहला धमाका होगा किंग के खिलाफ, इंग्लिश रिवॉल्यूशन हो जाएगा। आया समझ में? वो किंग के खिलाफ था ना, किंग मरेगा, ये होगा, दिस दैट एंड ऑल। कई सारी स्टोरीज हैं, नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ द सिलेबस, सो लिव इट। डेमोक्रेसी विल कम इनटू पिक्चर। यहां समझने वाली बात है, यहां समझने वाली बात है, नॉट द सेम डेमोक्रेसी व्हिच यू आर थिंकिंग। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, यहां समझने वाली बात है, जो हुआ इसका सूत्रधार कौन है? मर्चेंट क्लास। मर्चेंट क्लास ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किंग उन पे टैक्स लगा रहा था। मर्चेंट क्लास का स्लोगन आएगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है किंग के कोर्ट में। किंग टैक्स नहीं लगा सकता। किंग बोलेगा हैव यू गॉन क्रेजी? किंग बोलेगा आई एम द शैडो ऑफ गॉड। पता नहीं ये थ्योरी कहां से आई, ये पूरे वर्ल्ड में है। किंग अपने आप को गॉड का शैडो मानता है। ये इंडिया में भी है वैसे, ये बहुत पहले से, ये बहुत पुराने टाइम से है, ठीक है। बोलेगा आई एम द शैडो ऑफ गॉड, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट मी, आई एम द सोवरेन। बोला तुम पागल हो गए हो किंग, ये लो रिवॉल्यूशन। समझ में आया? तो उसने एक चीज बनाई, पार्लियामेंट। किसने? बात को याद रखो,
मर्चेंट क्लास में हमारे लोग बैठेंगे वहां पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट बना, तो उसमें तो किंग बन गया नॉमिनल हेड, यहां पर बैठेगा प्राइम मिनिस्टर, यहां पे लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, द नॉर्मल। ये मान लो इसके पास ज्यादा नंबर है, ये रूलिंग क्लास है, ये ऑपोजिशन है, तुम कोई भी हो, तुम हो मर्चेंट, आज द मर्चेंट क्लास खुद बैठा है या उसका रिप्रेजेंटेटिव है, नाउ द कंप्लीट गवर्नेंस सिस्टम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इन अ डेमोक्रेसी बाय द मर्चेंट क्लास। आया समझ में? यहां गॉड का काम हुआ, ये सारे काम कर रहे हैं प्रोटेस्टेंट्स, आएंगे हम अभी, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना समझ में आया? मर्चेंट क्लास अब पूरा गवर्नेंस सिस्टम चलन लगा, उनको चाहिए पैसा। सेकेंड सक्सेस दिखेगा तुमको फ्रांस में, बहुत लंबा स्टोरी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, कई सारी चीजें हम आगे देखेंगे। इंग्लिश रिवॉल्यूशन डायरेक्टली सिलेबस में है नहीं, तो हमने उसको कम में छोड़ दिया। फ्यूडल लॉर्ड्स कहानी खत्म हुई ऐसे ऐसे ऐसे, फिर किंग की कहानी आई, फिर किंग का कहानी खत्म हुआ ऐसे। अब एंड में कौन बैठा है वहां? गॉड साइट्रैक, पोप वोप खत्म प्रोटेस्टेंट्स वर्ल्ड में, अब बैठा है मर्चेंट क्लास। कैपिटलिज्म के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है? नोट्स देंगे, दूंगा पक्का, हाँ नहीं इस बार देंगे 100%। I am giving you time to sink those things inside. हम बोलोगे सर बहुत डाटा हो गया, बहुत डाटा हो गया, जितना समझाया तुम्हें समझ में आया ना? नाउ गो एंड रीड एनी टॉम डिक एंड हैरी बुक, जो पढ़ना है पढ़ डालो, तुम्हें अब सब समझ में आएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें लिखी होगी, क्लास के बाद तुम्हें पूरा समझ में आएगा। अब जो जो से सांसें ले लो, एक और कहानी है बड़ी सी। प्राणायाम। तो मास्क क्यों पहने हो? ऐसे ही तुम्हारा नाक तो खुला है यार, क्यों पहने हो? एक बात बताओ, कोविड के टाइम पे तुम मास्क कैसे पहनते थे? दिखाओ, ऐसे पहनते थे? एक और बात बताओ, कोविड के टाइम पे मास्क पहनने से कुछ हुआ? कोई इफेक्ट हुआ कुछ? तुम में से कितनों को कोविड हुआ था? किसी को कोविड नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? Arunachal is the state which was not affected by COVID, is the only place in the world, right? तुम में से किसी को नहीं हुआ? यही आ जाना चाहिए था ना तब, तो बोला नहीं है तुम लोगों ने। ओके, बनाते हैं कैपिटलिज्म बेस ऑन 15, पता नहीं कौन है। लिखो लिखो, तुम लोग लिखो यार, तुम लिखो, लिखो भाई, नोट्स लो। फ्यूडलिज्म, it is a kind of socio-political organization. It is a kind of socio, and you'll write faster, political organization which arose in medieval Europe and was based on land tenure given by the Lord to the vassals.
given by the Lord to the vassals. लिख लो इस पार्ट को. Next paragraph. In medieval Europe, the king was very weak. The king was very weak. Now you know why. He could not save his subjects. He could not save his subjects from plunder of foreign invaders. So common man turned to strong and powerful leaders. Strong and powerful leaders for life and safety. For life and safety. The protectors were known as Lord. इसको काला कैसे किया जाए? How to make this black? This one. So again, ये वाली. अरे नहीं. I want to make this white screen to be black. ये आओ. This one, right? Okay. White screen was good or black screen is good? Blue is good. बोला क्यों नहीं पहले? एसी बंद है. चलाओ उसको. उसे चलाओ. गर्मी लग रहा है. आ जाओ हो गया. आ जाओ. जानते हैं हम लोग लॉर्ड और लीज लॉर्ड. लॉर्ड और लीज लॉर्ड और सुजरन. हम तो क्या. The people who sought protection were called vassals. VASSALS. SSALS. Then give heading disintegration of feudal system. Disintegration of feudal system. First point within this, and hopefully you can understand it. First point, in Middle Age or medieval age, revival of trade was accompanied by growth of towns. Old town became larger
and many new towns emerged. And many new towns emerged, mainly as center of manufacture and trade. Mainly as center of manufacture and trade. They had their own government. They had their own government, own militia, military, own militia, MILITIA, and even own courts, court, and even own courts. Towns also provided asylum, saran, ASYLUM, asylum to serfs, जो bonded labor थे बेचारे, to serfs who escaped from feudal oppression, who escaped from feudal operation, not operation, operations, OPRESSIONS, not operation, operations. The towns, next, the towns encouraged the cultivation of cash crops. Hopefully you know what is cash crops. I'm going to explain. Cultivation of cash crops needed for manufacturers. Needed for manufacturers. And peasants received their payments. And peasants received their payments in money. Hopefully you are getting in money. Feudal system में barter system था. You know what is barter system? Here money use होने लगा. The peasants could now pay their dues. The peasants could now pay their dues to the lords. Lord is also okay. Is to the lord in cash rather than in labor. Rather than in labor. Next point. With the growth of trade, write faster, next point. With the growth of trade, there was increasing use of money. Money had little use in feudal society. Money had little use in feudal society. Where barter system was prevalent. Barter system was prevalent. Done. Within this next paragraph or subpoint, with the growth of trade and manufacturing, with the growth of trade and manufacturing, marked the beginning of transition. Manufacturing marked the beginning of transition from feudal economy to capitalist economy. From feudal economy to capitalist economy. In which wealth is used to make profit.
wealth is used, I hope you're getting what is wealth. It is not necessarily money. Wealth is used to make profit. The profits made are reinvented. The profits made are reinvented to make further profits. To make further profits. Next, in feudal societies, next point, in feudal societies, three classes of people. There were three classes of people, तीन थे, which I said just now. Clergy, priestly class, knights, soldiers, and commoners or the workers. Clergy, knights, and we the people of India, common men, commoners. Common people, peasants, workers, you can add anything. Within this, with the growth of trade, a new class emerged. The beautiful middle class. Do not write beautiful, just write middle class. Mutton class. बहुत कुछ हम किया है, लेकिन अब थोड़ा हम पढ़ेंगे फिर से. Giving system of manufacturing goods. Easy, very easy. कुछ नहीं है. सुनो, छोटी सी कहानी है, कुछ नहीं इसमें. Easy. फ्यूडल सोसाइटी में तुम लोग समझो, विलेज सोसाइटी में लोगों का आपस में बॉन्डेज था, क्लोज्ड एंटिटी थी, लाइफ बड़ी नॉर्मल सिंपल था. अभी भी बहुत जगह पर है, वर्ल्ड में मैक्सिमम जगह अभी भी ऐसा ही है. तो कोई खास जरूरत नहीं थी बाहर पे किसी का. सुनो, उसी गांव के अंदर ही सब कुछ हो जाता है. लाइफ बड़ी सिंपल है. 6 बजे से पहले सब कोई सो जाते हैं शाम को, है ना. सुबह गए, खेती बाड़ी किए, जो खाना पीना आया उसी में जी लिए. एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी. क्लियर है इतना. नॉन एग्रीकल्चरल चीजों को भी वो जो फार्मर है उसी का कोई फैमिली मेंबर बना देता था. क्लॉथ वीविंग हो गया, कुछ भी, या फिर उसी गांव के अंदर ही नेसेसिटीज फुलफिल हो जाता था. कुछ खास डिमांड था नहीं. आया समझ में इतना. ये फ्यूडल सोसाइटी, फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद छोटे छोटे टाउन्स बने, कुछ लोग छोड़कर गए बाहर. ये सारी कहानियां इसीलिए कही जा रही थी. वहां पर जब वो गए, अपना गांव छोड़कर गए हैं, बस्ती छोड़कर गया है कोई, वहां पर उसके पास कुछ तो है नहीं ना. दे डू नॉट हैव लैंड, दे नीड टू वर्क समथिंग. तो सिमिलर प्रोफेशन वाले कुछ लोग गए. 3-4 लोग मिलकर, 3-4 लोग ऑफ सिमिलर प्रोफेशन, लेट देम बी आयरन स्मिथ और ए कॉपर स्मिथ. वे लोग गए, 3-4 लोग मिलकर गिल्ड बनाए. एक लोग से ज्यादा काम करेंगे ये लोग, दे विल डू मोर वर्क, हेंस दे विल प्रोड्यूस कंपैरेटिवली मोर. ट्रेड एंड कॉमर्स वाली जगह पे कर रहे हैं वो, टाउन्स एंड सिटीज में कर रहे हैं. वो गिल्ड सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज गिल्ड सिस्टम. उन्होंने, अब सुनो, उनकी अपना रॉ मटेरियल है, उनका अपना टूल है, उनका अपना स्किल है. तीनों उन्हीं का है. गिल्ड सिस्टम में तीनों उन्हीं का है. समझ में आया. उसने थोड़ा सा ज्यादा बनाया, उसने दिया ट्रेडर को, मर्चेंट क्लास को. मर्चेंट क्लास ने बेचा, मुनाफा कमाया. नाउ मर्चेंट क्लास हैज गॉट मोर मनी नाउ. बोला अरे भाई और दो यार, और दो. लेकिन ये 4 जन है, वो ज्यादा कर नहीं पा रहा. मर्चेंट क्लास बोला ओके वेल एंड फाइन, तुम एक काम कर, तो अपना गांव जा और तुम्हारे जैसे लोग को लेकर आ.
वो लेकर आए, तू डर मत, मैं तुम्हें दूंगा और रॉ मटेरियल। समझ में आया? उसने उसको रॉ मटेरियल दिया, रॉ मटेरियल हाथ से गया, ज्यादा लोग आए, इसको कहते हैं पुटिंग आउट द सिस्टम। गिल्ड्स, वो सिस्टम पुट आउट हो गया, पुटिंग आउट द सिस्टम। उसने उसको रॉ मटेरियल ढेर सारा दिया कि थोड़ा और ज्यादा बड़े हो गए। समझ में आया? उनकी टूल है, उनकी स्किल है, तो ज्यादा और प्रोडक्शन हुआ। यस और नो? अब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने लगी, इसलिए बढ़ने, क्यों बढ़ने लगी, विल सी टू दैट पार्ट आल्सो। नाउ दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद इंडिया, उन्होंने सी रूट निकाल दिया, समझ में? अब ये डायरेक्ट कर रहे हैं डील, और बीच में मुस्लिमों को गया बेटा, उनकी कहानी खत्म। अब वर्ल्ड चलेगा क्रिश्चियन वर्ल्ड बनकर, अभी वो कहानी अभी शुरू होने वाली है। अब उनके पास और कौन सा मूवमेंट, अभी कौन सा रिवोल्यूशन होने वाला है ना? टेक्सटाइल रिवोल्यूशन। द फास्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज टेक्सटाइल रिवोल्यूशन, कपड़ों वाला। समझ में? इंडिया का सबसे पहला मार्केट कौन सा बर्बाद हुआ था? टेक्सटाइल मार्केट बर्बाद हुआ था। इतना समझ में आया? अब बोलेगा नहीं यार बहुत हुआ। अब कैपिटलिस्ट क्लास के पास, मैंने कहा था ना, मर्चेंट क्लास रोड बनाएगा भी ना, वो उसकी मेन एम है बिजनेस। वो हर वो काम किया, स्टीम इंजन बिजनेस, स्टीमर बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस, सब कुछ। वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वही पैसा लगाएगा जिससे पैसा बने। कैपिटलिज्म आया समझ में? वेल्थ लगा रहा है वेल्थ के लिए, साइंस भी वेल्थ के लिए। तो उसने बनाया वीविंग मशीन्स, हैंडलूम नहीं रहा। आया समझ में? गिनिंग मशीन्स, कॉटन सीड निकालने के लिए भी उसने क्या बनाया? मशीन भी मेरा, रॉ मेरा, मेरा, सब कुछ मेरा। सिर्फ लेबर क्लास आएगा, अपना लेबर देके जाएगा। लेबर क्लास fully got dependent on the merchant class. न्यू क्लास की पिक्चर, लेबर क्लास। पहले था मर्चेंट क्लास, अब एक नया क्लास निकला, लेबर क्लास, और ये उसका एक्सप्लॉइट करेगा। इसको रुपए चाहिए, मनी, और रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों? बिकॉज द न्यू सो कॉल्ड मर्चेंट क्लास इज नो मोर थ्रेट ऑफ गॉड। वो रिलीजन से बाहर आ चुका है। समझ आ रहा है कुछ? वो रिलीजन से बाहर इसलिए आया क्योंकि उसने प्रोटेस्ट किया है चर्च के खिलाफ। प्रोटेस्टेंट है वो रिलीजियस डोमिनेशन से बहुत मेहनत से बाहर निकला है। उसने 400 साल लड़ा है उसके लिए, वो वापस जाना नहीं चाहता। उसका एक साइड इफेक्ट है कि उसकी मोरालिटी और एथिक्स भी मरती है। वो इंसान नाउ ह्यूमन बीइंग रिसोर्स हिम, दिस इज गेटिंग जस्ट विल से ह्यूमनिज्म। इसके बात करेंगे, मैंने कहा था ना कई सारे और स्टोरीज, ह्यूमनिज्म, कैपिटलिज्म, कॉलोनाइजेशन। ब्लैक को लेकर अभी क्या करेगा? अब वो इंसान को इंसान ही नहीं समझेगा, व्हाइट रेस सुपीरियर। अभी आएगा स्टोरीज, समझ में आया? फ्यूडल सिस्टम, 4-5 लोग मिलकर शहर आए, क्यों आए? दैट पर्टिकुलर सिस्टम तो नहीं यार, काम नहीं बन रहा, मुझे और दो, और पुटिंग आउट द सिस्टम, मुझे और चाहिए, मोर फैक्ट्री सिस्टम, एनॉर्मस प्रोडक्शन। अब यूरोप के कुछ देश, ये शुरू होगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्यों शुरू होगा? कहीं तो बेचेगा, पहला बेचेगा यूरोप में, पहला लूट मार करेगा वो यूरोप। रिलीजन नहीं तो वो वापस क्यों? प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट करके निकला, 400 साल लगा इसको, अब वापस जाना नहीं चाहता। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमने थोड़ा और आगे बढ़े हमने। क्लियर? लिखो, in feudal system most of the non-agricultural products, in feudal system most of the non-agricultural products required by peasants, right faster, required by peasants were produced in the households of the peasants, were produced in the households of the peasants.
कहाँ थे हम लोग? And the serfs were, and the serfs who serfs SERFs who were skilled. कहाँ थे? Please read the line once again. In the feudal system, फिर peasants were produced in the households of the peasants, right? Sentence is correct. And the serfs who were skilled craftsmen for the Lord. Skilled craftsmen for the Lord. Next point. Now we'll bring that guild. Upon lying guild. With the growth of towns, many of these activities shifted to towns. Many of these activities shifted to towns, where people skilled in particular crafts, organized themselves into guilds. कितने बजे तक क्लास है? 6 बजे तक? 6, ओके 6. Guilds. लिख लो इसमें the unit of production were small. ब्रैकेट में लिखो 3 to 4 people. 3 से 4 लोग थे. And each unit had a shop. उनका छोटा छोटा दुकान भी था. To sell its produce. Has a shop to sell its produce. But the guild system was not suitable for large scale production. Next, related to putting out system. Putting out system. The merchants, right faster, the merchants would bring the master craftsman. क्या देगा उसको? The raw material. मास्टर क्राफ्ट्समैन को वो रॉ मटेरियल देगा. The raw material. The craftsman. Next line. The craftsman will work with his tools. And produce will be taken by the merchant. That will lead to next point, factory system. Factory system. Production was carried out in a building. Right faster. Production was carried out in a building. Owned by the capitalist. Or the merchant class, whatever. Owned by the capitalist. इसमें उसका सब कुछ है, ठीक है, मशीन सब कुछ है. The workers own nothing.
The workers owning nothing and only worked for the wages. Next. Beside the lords, next point, beside the lords, the church also owned vast stretches of lands. ये भी लैंडलॉर्ड था ना. The church also owned vast stretches of land thus they also became the part of the feudal system. The revolt against feudal oppressions, were therefore against the church also. Renaissance, beautiful heading. Renaissance, Renaissance or Renaissance. What do you mean by Renaissance or Renaissance? अभी कहा तुमको, right? It's called as rebirth. I'll give notes. Just wait. Notes are not very significant. Just because you are just asking for notes, just to fool you, I'm giving you notes. You have to read the book. Huh? Notes are from book. No, notes are needed. What is Renaissance? Rebirth. जो मैंने अब तक इतनी सारी कहानी मतलब बोला ना, the rise of the Protestants. Why they are called as Protestants? They have protested. That's why. Against whom? Now the Catholics. What is the literal meaning of Catholic? Do not show a blank face. What is the literal meaning of Catholic? नहीं पता. क्या है? उदारता. You know, उदारता. उदार आदमी है. Being मतलब being kindness. सबसे प्यार करना, काइंड. वो लिटरल मीनिंग है, असली में है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. समझे? वो लिटरल मीनिंग है. तो इन्हीं उदारवादियों के विरुद्ध एक वो प्रोटेस्ट हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट्स. जो प्रोटेस्ट करके निकला है, लेकिन बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. समवन इज इन एब्सोल्युटली डार्क फेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी. वो कितना भी निकल जाए, उसमें वो ऑर्थोडॉक्सी वाली चीज रहेगी, है ना. सो इसीलिए प्रोटेस्टेंट्स के बीच में फिर से मारामारी होगी. उससे एक और ग्रुप निकलेगा, प्यूरिटन्स. समझ में आया? प्यूरिटन्स बोलेगा प्रोटेस्टेंट्स को. दोनों प्रोटेस्टेंट है, समझ में आ रहा है ना? ये है प्रोटेस्टेंट्स. उसमें से एक ग्रुप निकलेगा, बोलेगा अरे यार, यू आर बिहेविंग लाइक ए कैथोलिक. ठीक है, हम उनसे पूरा निकलेंगे. वो होंगे प्यूरिटन्स. वेस्टर्न यूरोप में प्रोटेस्टेंट जीत गया, मैं इस बात को मानता हूं. उसने मार दिया किसको? कैथोलिक को. मैं उसको ही मानता हूं. ईस्टर्न यूरोप में कैथोलिक जीत गया, उसने मार दिया प्रोटेस्टेंट को. 400 साल लड़े हैं भाई. 400 years ऑफ ब्लडशेड. 400 years. अभी प्रोटेस्टेंट्स के बीच में मारामारी चल रहा है. तुम असली में प्रोटेस्टेंट नहीं हो. तो वहां पर एक और मारामारी हुई. समझ में आया? वेस्टर्न यूरोप में. अब ये प्यूरिटन्स बिकॉज ऑफ दिस मारामारी अब छोड़ के जाएंगे. वर्ल्ड मैप निकालो. वर्ल्ड मैप का पेज याद रखो. सी द वेस्टर्न यूरोपियन मैप. Seen Western Europe, that France, Germany, UK, that part. हाँ, वहां पर फिर से चलो. इन शॉर्ट, दिस इज नॉट द रियल ट्रू स्टोरी, दिस इज शॉर्ट स्टोरी. वहां पर मारामारी होगी. दिस इज वन ऑफ द कॉज. हाँ, देयर आर वेरियस अदर कॉजेस. यहां से कई सारे प्यूरिटन्स छोड़ के जाएंगे नॉर्थ अमेरिका. आया समझ में क्यों नॉर्थ अमेरिका? वहीं पर बैठा, सीधा सीधा जाकर वहीं पहुंच गए.
नॉर्थ अमेरिका वो ढूंढा जा चुका था, नॉर्थ अमेरिका इंडिया को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये प्यूरिटन्स हैं जो जाकर पहुंचेंगे नॉर्थ अमेरिका। नाउ गो टू द मैप ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के मैप पे जाओ, नॉर्थ अमेरिका के, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका के मैप पे जाओ। वो एशिया, हाँ, नॉर्थ अमेरिका मैप पे गए, यस यस यस। सी इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस, ऑल द सिटीज आर देयर इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस। सारे मेजर सिटीज उसके मोस्टली ईस्टर्न कोस्ट में, दिखा वो येलो येलो वाला, दिखा? अरे सीन द सिटीज, नॉर्थ अमेरिका यूएस में जाओ, देखो सारे शहर उसके ईस्टर्न कोस्ट में। क्यों है? कई सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि प्यूरिटन्स वहां से छोड़कर निकले और आकर ईस्टर्न कोस्ट में बैठे, वहां पर 13 बस्तियां बनाई, 13 सेटलमेंट्स। वही सेटलमेंट आज बड़ा होकर न्यूयॉर्क एंड अदर सिटीज मतलब बने। देखो सारे शहर न्यूयॉर्क के ईस्टर्न कोस्ट में, मोस्टली, दूसरे भी हैं, सबसे बड़े बड़े शहर देखो ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में, कैन यू सी द सिटीज? डन डील। नॉर्थ अमेरिका में तो फिर कौन आया? ना प्यूरिटन्स आए, ठीक है। प्यूरिटन्स प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए थे, तो वे बिल्कुल भी रिलीजियस के क्लच में नहीं है, मोरलेस है नहीं है। आया समझ में कुछ? तो ये बनेंगे असली वाला कैपिटलिस्ट। बाप कैपिटलिस्ट है ये, उससे कम कैपिटलिस्ट है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। ये तो पैसा के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। यस और नो? गेटिंग? नाउ यू आर गेटिंग व्हाई यूएस इज बिहेविंग सच इन अ वेरी वियर्ड वे फॉर मनी। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन। अब आया स्टोरी, दे कैन, अब वो पाल सकते हैं, दे कैन फीड ग्लोबल टेररिज्म, they can go for throughout Africa, they can make one tribe to fight against other and sell arms to them. They can enter Vietnam, they can enter any damn thing, they can enter Iran-Israel war. They are creating all the mess in West Asia. Arms industry चलनी चाहिए, लोग मरे, human ethical values खत्म. They do not damn care, forget, they do not damn care for their own people. यूएस आर्मी के लोग मर रहे हैं ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मर्चेंट क्लास प्यूरिटन्स, नाउ दे हैव बिकम एब्सोल्यूट, दे हैव केम आउट ऑफ द क्लच ऑफ गॉड, दे हैव मेड दिस प्लेस टू बी हेवन। यहीं पर मजे करने उनको। आया समझ में? एसी बंद करना है, चलानी है, बट ये लो इतना समझ में आया? Why America? Now very recently, you know Meloni? You know Meloni? किस कंट्री की है? इटली की है ना? इटली कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है या प्यूरिटन है? कैथोलिक है, कैथोलिक है। रिलीजन के दबदबे में यूएस से तो बहुत अच्छा है, समझ में आया? तो वो अफ्रीका के सफरिंग के बारे में जर्मनी ने कहा नहीं, यूके ने कहा नहीं, फ्रांस ने कहा नहीं, इटली ने कहा ना। आया समझ में? इटली बार बार कहता है, नॉट दिस द फर्स्ट टाइम, इटली कई बार कहा है अफ्रीका की सफरिंग की वजह यूरोप है, यूरोप के कुछ देश हैं। अब तुमको समझ में आ रहा है क्यों ब्रिटेन शांत रहा, क्यों सब कोई शांत रहे, इटली ने ही क्यों कहा? वो रिलीजियस थॉट प्रोसेस वाले में वो जो गॉड, ये बुरा हो जाएगा, सिन, वर्च्यू, वो सब थॉट प्रोसेस में ये लोग हैं, तो इसीलिए बार बार इटली कहेगा। समझ में आया? नाउ द थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू व्हाट माइट बी द केस। अब हमने ये चीज भी देखा, असली में रिनाइजेंस जिसने शुरू किया था उसका फायदा प्रोटेस्टेंट से लिया, मैं इस बात को मानता हूं। शुरू लेकिन किया था कैथोलिक ने, इटली ने शुरू किया था।
उन्होंने उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्लियर इतना? डन? बाकी चीजें होंगी। नाउ सी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज, गो टू यूरोप एंड सी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज इस्तांबुल। Go to Turkey. Is a connecting point between Asia and Europe. There is a place called as Istanbul. See, तुम अटलास क्यों नहीं ले? कल से लेकर आना। Do it faster. Turkey. देखा? It was the capital of the Holy Roman Empire. Turkey. Have you seen it? Can you see? If you cannot see it from here, then go and see the Asia map. You'll find it. मिल गया ना? Seen? अरे यूरोप के पास ही है, देखो। देखा? टर्की। इस्तांबुल, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल, इन द नेम ऑफ पोप कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, यहीं पर जाकर रेनेजेंस की शुरुआत हुआ था, एंड अदर प्लेसेस। आई जस्ट सिंपली सी दैट प्लेस, व्हेन यू रीड द बुक यू विल कम टू नो। रेनेजेंस इटली में क्यों शुरू हुआ था, हमने इस पे बात कर लिया है ना? अब लिखो, राइट इट। रेनेजेंस लिटरली मीन्स रीबर्थ। रेनेजेंस, इस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है? नो नीड टू रिपीट। लिटरली मीन्स रीबर्थ। The revival first began in Italy. Now you know why. The revival first began in Italy when a number of scholars from Constantinople, वही इस्तांबुल, number of scholars from Constantinople migrated to Italy and number of Italian scholars to Constantinople and other cities of रोमन एम्पायर मत लिखो, अदर सिटीज ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, वो टूट चुका था। BYZANTINE, बाइजेंटाइन एम्पायर, इन द सर्च ऑफ Byzantine Empire in the search of Greek classics. Greeks का। As a result, hundreds of classical writings unknown to the Europeans for centuries, were circulating first in Italy and then in other parts of Europe, The Renaissance began in Italy because, next point, began in Italy because, first point, the revival of trade between Europe and the East had brought great prosperity to Italian cities, which virtually controlled the trade. Prosperity to Italian cities, which virtually controlled the trade.
The Italian cities, next. The Italian cities had grown up in the atmosphere of freedom. Grown up in the atmosphere of freedom from feudal control. Freedom from feudal control. Freedom from feudal control, right faster. This freedom encouraged thinking and the spirit of adventure. And the spirit of adventure. Next, the rulers of Italian state, were also patrons of patrons of learning and the arts. Last final point, the revival of pre-Christian, Christian classical learnings, the revival of pre-Christian classical learnings, and in the interest of cultural achievements, of ancient Greece and Rome, were important factors in undermining the domination of church. Then give heading, it is not in your book, hence we'll write it, humanism. ये किताब में है नहीं तो हम इसको लिखेंगे ह्यूमनिज्म, उससे पहले हम समझेंगे. Done. Now tell me, now open up and speak up till now what you have not understood. The flow is okay for you? Okay for you? We have seen that we have merged multiple factors now. हमने कई सारी चीजें अभी, now we are going to merge up one more story. Humanism is an outcome of Renaissance. Renaissance is a product of church exploitation. There is a limitation to human sufferings. You cannot eternally suppress any community for a longer time in the name of God. You cannot do that in the name of anything. Not in the name of money either. In the name of money, hence, Marxism will come into picture. Just wait and watch. Are you getting? Human seeks liberation from anything. By saying this, आज बात को समझो, ये जो प्रोटेस्टेंट क्लास है, इसने रिलीजियस सब्जुगेशन से बाहर निकलने का कोशिश किया, बाहर निकल गया, यही ना. वो बोला कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, यही ना. वो खुद आकर अन्याय करने भी तो लगा. उसका क्या? पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, एब्सोल्युटली. यही किंग था जो कि मदद मांग रहा था मर्चेंट क्लास से. मर्चेंट क्लास ने दे दिया, फिर बोला डिवाइन राइट ऑफ किंग्स. मर्चेंट क्लास ने उसे भी तो निकाल दिया. समझ में आ रहा है कुछ? अभी क्या होगा, इतना समझ में आया? नाउ आई एम सेइंग सम ह्यूमनिज्म, ह्यूमनवाद. मैं किस ह्यूमन की बात कर रहा हूं? मैं तुम्हारी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं. वो इंसानियत की बात नहीं है यहां, वो ह्यूमनिटेरियनिज्म है. इंडिविजुअल ह्यूमन सिग्निफिकेंस है यहां, और सिर्फ इंडिविजुअल ह्यूमन की ही महत्व है.
तो यहां पर ट्रीज का कोई वैल्यू नहीं है, एनिमल्स का कोई वैल्यू नहीं है, इंसान इंडिविजुअल ह्यूमन का ही वैल्यू है। मेरी वैल्यू मेरे लिए सोवरेन अल्टीमेट है, मेरे ऊपर स्टेट भी नहीं रहेगा। लेसेस फेरे करेंगे अभी इसको। आई होप यू माइट हैव हर्ड द टर्म लेसेस फेरे, नहीं सुना तो अभी करेंगे। ये जो ह्यूमनिज्म है इसकी अलग मतलब है, ये बहुत अच्छा चीज है, मैं इस बात को मान, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ये इंडिविजुअल ह्यूमंस आर सफरिंग, राइट? ये इंडिविजुअल ह्यूमन की लिबरेशन की बात कर रहा है। कौन सा लिबरेशन? वो रिलीजन वाला लिबरेशन नहीं। वो कह रहा है कि रिलीजन तो मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, चलो मेरे ऊपर स्टेट भी काम नहीं करेगा, मैं पूरा फ्री हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे पैसा चाहिए तो गेटिंग ना, स्टेट कंट्रोल नहीं करेगा बिजनेस को। रेनेसांस का एक प्रोडक्ट कैपिटलिज्म है, उसका दूसरा प्रोडक्ट ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिज्म का प्रोडक्ट कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट ह्यूमनिज्म है। आया समझ में कुछ? अंदर लो अंदर लो अंदर लो अंदर लो, गेटिंग गेटिंग, थिंक ऑन इट। रेनेसांस, मेरे साथ शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेड, आई स्टैंड अगेंस्ट द इनजस्टिस। वो निकल गया, सिटी बनाया, पैसा आ गया, स्टेट कंट्रोल ना, स्टेट कंट्रोल नहीं होगा भाई, स्टेट कंट्रोल नहीं होगा, टैक्स नहीं देंगे हम लोग, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन याद रहना चाहिए। Human individual values. Have you seen the Mona Lisa painting? Seen it? It's so useless. मुझे आज तक समझ में ना क्या पेंटिंग, मैंने उसको कई बार देखा, मैंने बोला इसकी मैं खूबसूरती ढूंढता हूं, मुझे कहीं दिखा नहीं। Why it is so famous? उससे पहले था, yes please, हाँ हाँ बोलो। वो बकवास पेंटिंग है, मैं ऐसे ही बना दूंगा घूम फिर के। उससे पहले जो पेंटिंग थी ना, उससे पहले रिलीजियस पेंटिंग हुआ करता था। पहली बार किसी ने ह्यूमन पोर्ट्रेट बनाया, वो रिवॉल्यूशन है, इसलिए नहीं कि बड़ी खूबसूरत है, वो रिवॉल्यूशन है। और वो चर्च पहले, आई होप आई सेड, जला देता था लोगों को। अब समझ में आया क्यों जलाता था? वो जजमेंट डे वाले कॉन्सेप्ट, सोचो क्या डार्क एज होगी वो, उससे निकल कर आए हैं ये लोग, मस्त मस्त काम भी किए हैं, अलग बात है। आया समझ में कुछ? मोनालिसा पेंटिंग इसीलिए रिवॉल्यूशन है। अब वो आर्ट पेंटिंग बनने लगा, ना ना ना, अब वो चर्च के खिलाफ है ना। देखो वो इंसान सब कुछ वही कर रहा है जो उसको चाहिए, वो एक जगह पर लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहां उसकी एथिकल मोरालिटी कुछ काम नहीं कर रहा। वही प्रोटेस्ट कर रहा है कैथोलिक के खिलाफ, वो न्याय अन्याय की बात भी कर रहा है। आया समझ में कुछ? पूरे गेम में वो मोरल एथिकल कंसर्न में नहीं डूबा। वो जो ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है ना, वो सिर्फ, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ दैट टाइम ह्यूमनिज्म। वो अपनी ही बात कर रहा है, वो अफ्रीका के ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझेगा, तभी तो स्लेव ट्रेड होगी। मैं यही ह्यूमनिज्म तुम्हारा सोसाइटी क्लास में आएगा, वो कुछ अलग समझाएगा, यही समझाएगा, लेकिन उसके बाद वाला क्लास ये है, वो बोलेगा इंसान की वैल्यू है, इंसान की सिग्निफिकेंस है, वो है, वो मैं भी बोलने वाला हूं अभी। लेकिन इंसान यहां पर सिर्फ यूरोपियन है, वो सिर्फ व्हाइट है, वही ही है इंसान, और सिर्फ प्रोटेस्टेंट व्हाइट है, सब व्हाइट नहीं होगा। अभी जर्मनी में लुथेरियन चर्च आएगा, ब्रिटेन में एंग्लिकन चर्च आएगा, ये दोनों प्रोटेस्टेंट्स हैं। लुथेरियन बोलेगा एंग्लिकन इंसान नहीं, ये बोलेगा लुथेरियन इंसान नहीं, दोनों लड़ेंगे। अब आया समझ में क्यों मार पाएगा हिटलर? बोलेगा ना, आर्यन इंसान है, दूसरे कोई इंसान नहीं, ओनली आर्यंस आर ह्यूमन बीइंग्स। तुम क्रिश्चियन क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूरे कॉन्सेप्ट को ही बाहर निकाल दिया। वो जो नॉन आर्यन उसको मारेगा, जो आर्यन उसके खिलाफ जाएगा वो उसको भी मारेगा। ये कल्चर है। इतना समझ में आया? ना नहीं आया? कल के क्लास में कहा था मैंने, ये जो